All right, guys, good evening from here. And today we'll be starting, technically, it's a second class because in the first class we discussed the course outline. And today is a second class, but when you talk about learning or something very interesting, an introduction to audit, this will be our first class. This is our first class, you know. उस पे हमने बात करनी है, and I'll start right from very scratch. सही है ना, चाहे I talk about financial statement or I talk about company, सब कुछ, and I promise it's really very interesting. बहुत बहुत यानी बहुत मजा आएगा. Okay, let's start with the first thing, which is company. What is company? और आप लोग मेरे ख्याल I believe in company law या जो भी आपने law पढ़ा है या maybe in financial accounting उसमें भी आप लोग corporate की बात करते हो. So what is company? देखो company is an artificial. मैं उस तरह नहीं पढ़ाना चाहता कि मैं डायरेक्ट जंप कर दूं ऑडिट की डेफिनेशन पे. नो, let me make some ground first. What is company? Company is an artificial legal personality. Okay, I'm not talking about sole trader, क्योंकि बिजनेस करने का एक तरीका सोल ट्रेडर भी होता है ना कि यू आर सिंगल गाय और देयर इज नो शेयर होल्डर्स, या आप खुद ही ओनर हो, खुद ही मैनेजर हो, जैसे एक नॉर्मल स्टोर होता है उसमें यू वर्क एज अ सोल ट्रेडर. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, और वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पार्टनरशिप. We talking about company. Company is an artificial legal personality, क्योंकि company भी एक वजूद होता है. Okay, company is an artificial legal personality and it is owned by shareholders and run by board of directors. Yeah? It is owned by shareholders. Shareholders जैसे आप जब किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हो, let's say PSO, Shell, Apple, whatsoever. Okay, लेकिन आप उस कंपनी को रन नहीं करते. सही है ना, आप वो बंदे हो जिन्होंने इन्वेस्ट किया. यू आर एक्चुअली द ओनर एंड सिटिंग एट होम. ओके, बट यू आर द रियल ओनर, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स. और इसको रन करने वाले लोग कौन है? दोज हु आर इलेक्टेड बाय यू गाइस, जिसको हम कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड मैनेजमेंट. तो कितनी, देखो 3 बॉडीज होगी. लेट मी शेयर माय स्क्रीन नाउ. यू गो, यू सी, एक बॉडी जो है आर्टिफिशियल बॉडी इज द कंपनी. Second is the shareholders, which actually own this investment, and then the person who actually run the company on behalf of the shareholder. Okay, तो ये क्या है? ये है shareholders, company and board of directors. Now, the relationship between shareholders and board of directors. The relationship between shareholders and board of directors. The first relationship is called agency relationship. First relationship is agency, and second is called stewardship. What is agency relationship and stewardship? Just give me 1 minute. Agency and stewardship. Okay, देखो एजेंसी रिलेशनशिप क्या होता है. Maybe you already done in law of contract or law of agency, उसमें आपने पढ़ा भी होगा, but let me do with the scratch. Okay, agency relationship क्या होता है कि when one person the owner, when one person the principal appoints another person, gives him authority and delegates him authority and allows him to do contract on behalf of him. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं प्रिंसिपल हूं, मैं ओनर हूं, बट मे बी ड्यू टू एनी एक्सपायर्ड रीजन, आई डोंट हैव टाइम, आई डोंट हैव रिसोर्सेज, मे बी नो टेक्निकल एक्सपर्टीज, आई हायर्ड समवन. किसी बंदे को मैंने हायर किया और मैंने उसको अपॉइंट करने के बाद उसको अपनी अथॉरिटी दी कि ठीक है, मैं तुम्हें शक्ति देता हूं, मैं तुम्हें पावर देता हूं कि यू डू कॉन्ट्रैक्ट to third parties on behalf of me. Okay, you run this activity. This rishtedari, this relationship is called agency relationship. The person who has the authority, who actually owns it, who owns the show, is the principal. And the person who is delegated authority, who has the delegated authority, see, who is authorized actually, जिसको authority दी गई, that's become the agent. अब आप इस केस में भी देखें तो क्या हो रहा है? Shareholders are actually the principal. ठीक है ना, shareholders क्या है? Principal है, P principal, and board of directors are actually agents. तो इनके बीच में पहला रिश्ता क्या क्रिएट हो गया? एजेंसी रिलेशनशिप. कि shareholders are the principal owner, they appoint, they elect board of directors, give them authority, and then these board of directors, they work on behalf of the company and on behalf of
shareholders. This is called agency relationship. That's the first thing. Now second is stewardship. What is stewardship? ये क्या रिश्तेदारी? Steward, what do you mean by steward? रखवाला, चौकीदार, what do you call, caretaker, सही है ना, steward, अमानतदार। अच्छा, स्टीवर्डशिप रिश्ता क्या होता है? देखो एजेंसी में क्या था, ओनर ने अथॉरिटी दी थी एजेंट को, सिर्फ अथॉरिटी दी थी। इन स्टीवर्डशिप यू एक्चुअली gives your asset, you actually gives your investment to someone else and you make him accountable. That person actually become a steward, रखवाला बन जाता है। For example, this thing, I own this thing, this is my thing, this is my fund, this is my cash, this is my investment, whatever, सही ना? तो मैं तो हो गया प्रिंसिपल, मैं तो हो गया ओनर। मैंने ये चीज आपको दे दी, नॉट लीगली, मैंने ये नहीं कि अपनी ओनरशिप आपको दे दी, नहीं, आई हैव जस्ट ट्रांसफर्ड फिजिकली दिस एसेट टू यू। ओके, ये एसेट अब तुम्हारे पास और तुम इस एसेट को अब यूटिलाइज करो। ओके, यू यूटिलाइज दिस एसेट at the end of let's say year one, at the end of month one or quarter one, whatever the agreement between us, at the end of that particular period, I have the right, ये मेरा बुनियादी हक है, मालिक का बुनियादी हक है, basic right है। I can ask question from you guys, say ना, from the steward, from the रखवाला, that how did you utilize it? तुमने इसको कैसे utilize किया? How much you own? How much you owe? सही है ना? What did you earn? What did you lose? सारी चीजें मैं आपसे पूछ सकता हूँ। That's my basic right as an owner, सही है ना? और आप उसके लिए जवाबदेह हो, जिसको कहते हैं अकाउंटेबल हो, ठीक है ना? इस रिश्ते को कहते हैं स्टीवर्डशिप रिश्ता। स्टीवर्डशिप रिश्ता क्या है कि जब एक शख्स अपनी कोई प्रॉपर्टी, अपना कोई एसेट, अपने कोई फंड्स किसी दूसरे के हाथ में दे और उसे कहे नाउ यू यूटिलाइज दोज एसेट, यू यूटिलाइज दैट फंड, यू यूटिलाइज दैट प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ मी, दैट्स कॉल्ड स्टीवर्डशिप रिश्ता, ठीक है ना? अब आप अगर देखें तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स में ये वाला रिश्ता भी है, स्टीवर्डशिप भी। शेयर होल्डर्स आर एक्चुअली द ओनर, ओनर्स है नहीं कि उन्होंने अपना कैश, अपने फंड्स, दे गिव इट टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड नाउ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दे बिकम स्टीवर्ड। ये क्या बन गए भाई? स्टीवर्ड बन गए, ठीक है ना? ये रखवाले बन गए, ये चौकीदार बन गए। एंड एट द एंड ऑफ द पीरियड दे आर आंसरेबल, जिसको हम कहते हैं ना अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है? अगर मैं इसको लिखूं, एहतसाब होता है ना, एहतसाब, दे हैव टू जस्टिफाई देयर एक्शंस। और ये बिल्कुल सही बात है कि जब उनके हाथ में एसेट दिए गए, उनके हाथ में प्रॉपर्टी दी गई, इन्वेस्टमेंट दी गई, नाउ दे आर अकाउंटेबल टू द शेयर होल्डर्स। और जो कि होता है, आप अगर कंपनी के केस में देखें तो हर साल दे कंडक्ट एन एनुअल जनरल मीटिंग, एक सालाना इजलास होता है जिसमें बाकायदा शेयर होल्डर्स बुलाए जाते हैं, फिर वो सवाल करते हैं और ऐसे ही होता है ना। ऑल्दो बड़े मसले मसाइल इसमें भी चलते हैं और पुअर गवर्नेंस भी होती है। नॉर्मली ये जो एजीएम्स होती है, एनुअल जनरल मीटिंग, दे आर पुअरली अटेंडेड, दैट्स द प्रॉब्लम। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो सबसे बड़ा वो पुअर मसला है वो यही है कि नोबडी डेयर टू अटेंड इट, सही है ना? ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे पेरेंट टीचर मीटिंग, पेरेंट्स के पास टाइम ही नहीं है टीचर मीटिंग का, बिल्कुल ऐसे ही शेयर होल्डर्स का ही मसला है। मैं बल्कि आपको, नॉट टू मेंशन द नेम ऑफ द कंपनी, जब कभी भी वो एक कंपनी में ऐसा हुआ था कि एक ऐसा बड़ा टेक्निकल सवाल शेयर होल्डर ने पूछा, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है, जो डायरेक्टर्स से, ऑडिटर्स से, सीईओ, ये लुकिंग एट ईच अदर, क्या करें? तो दे हैड वन, यू नो, अ ग्रेट थिंग, एक बड़ा अच्छा उनके पास एक आइडिया आया, तो वो पीछे से आवाज आ गई, ओके इट्स टाइम फॉर डिनर। और सारे उठ के शेयर होल्डर है ना वो डिनर और इस पे लग गए। सम टाइम कंपनी दे प्रोवाइड गिफ्ट्स, ये बहुत होता था पहले भी कि भाई बड़े बड़े गिफ्ट्स दिए जाते हैं, पता चला वो बेचारे गिफ्ट्स में ही खोए रहते हैं, and they forget they already invested so much amount in the hand of this company and board of directors and all, और वो बस इसी गिफ्ट और इसी डिनर में वो सब पीछे निकल गए, सवाल वहीं का वहीं रह गया और दैट्स इट। ऐसा होता है, ठीक है ना? ये वही है कि वो राशन दे दिया तो लोगों ने वोट दे दिया, दैट्स द सेम थिंग, द माइक्रो थिंग। तो एक चीज है एजेंसी और एक चीज है स्टीवर्डशिप। अब जरा थोड़ी देर गौर से सुने, देखिए ये शेयर होल्डर्स का बुनियादी हक है कि दे कैन आस्क क्वेश्चन, सही है? जैसे मैंने कहा ओनर का ये हक है, और डायरेक्टर्स या मैं कहूं स्टीवर्ड्स, रखवाले, उनके ऊपर इट इज दैट ड्यूटी कि दे हैव टू आंसर इट, ठीक है ना? उनको जवाब देना है। अब हमारी कंपनी के केस में जवाब कैसे दिया जाता है और अपने एक्शन कैसे जस्टिफाई किए जाते हैं? थ्रू प्रिपेयरिंग दिस थिंग। व्हाट दैट थिंग? अभी तक देखो ऊपर लिखा हुआ नहीं है, सोचो क्या चीज है जो वो बनाते हैं? दे प्रिपेयर इट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये एक ऐसी टर्म है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यू सी 1000 or maybe 5000 times in this book,
in this course outline audit. हर वक्त आपको यही term नजर आ रही होगी, financial statement, material misstatement in the financial statement, examination of preparation. Every time you see this financial statement, जब भी financial statement का नाम आए 5 component दिमाग में आ जाए, वो आपको आने चाहिए because you already done accounting or you doing accounting. पहला क्या भाई, जिसको you call it income statement, मेरे जैसा पुराना आदमी उसको income statement कह रहा है, you call it statement of comprehensive income. सही है. इसी तरह बैलेंस शीट, यू कॉल इट SOFP. हाँ, इसी तरह कैश फ्लोज, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, सोशी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, एंड योर नोट्स टू अकाउंट्स. ओके, जो डिटेल्स है. These 5 components collectively known as what? This umbrella is known as financial statement. So whenever you see financial statement, it means they're talking about these 5 things. Say income statement, that's statement of comprehensive income, SOFP, SOCI, and changes in equity, and cash flows, and notes to the accounts. Okay, ये 5 components. अब देखो, जब अभी मैंने कहा कि स्टीवर्ड जो है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं और जो स्टीवर्ड हैं, दे आर अकाउंटेबल टू शेयर होल्डर्स. हाउ दे डिस्चार्ज फ्रॉम दिस अकाउंटेबिलिटी ड्यूटी, हाउ दे डिस्चार्ज फ्रॉम देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी, वो कैसे इस अकाउंटेबिलिटी से और इस ड्यूटी से डिस्चार्ज होते हैं? बाय प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ऐसे ही होता है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती है और शेयर होल्डर्स को भेजी जाती है इसी तरह, और बाकायदा ये AGM कंडक्ट करते हैं. अब तवज्जो से जरा सुने इस बात को, यानी ये जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, सही है, और ये रहे आपके शेयर होल्डर्स, और इनको कनेक्ट कर रही है ये चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी वो 5 कंपोनेंट्स व्हिच इज एक्चुअली प्रिपेयर्ड बाय मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. टू whom, किसके लिए बनाए? फॉर द शेयर होल्डर्स. ठीक है ना, इनके लिए बनाए ना. लेकिन अब जरा सोचें, ये शेयर होल्डर्स जो हैं, how can they rely on this financial statement which is prepared by the people, those who actually run the company? यानी ये बात हो गई कि मैं ही आपका टीचर और मैं ही then examiner and I'll be the invigilator and I'll be the marker. That's it. सब कुछ ही मैं हो गया. हाँ, सब कुछ ही मैं हो जाऊं. ये तो कमाल ही हो गया भाई, ये तो कमाल हो गया. ये सारी चीजें, एक सेकंड बोलो. Now it's better. मुझे ऐसा लगा लाइट कम हो रही है. Okay, now see, what do you call, हाँ, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाए भी वो, और उसके बाद वही कहें कि दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ऑसम. ये तो सबसे अच्छी है. हाउ कैन शेयर होल्डर्स रिलाई ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्टर्स? दे कैन नॉट रिलाई. सीधी बात, वो तो रिलाई नहीं कर सकते. और मेरा ख्याल है ये बात जायज है, ये जस्ट बात है. जैसे I remember, or I always do this claim, लेकिन एक दफा बाकायदा मैंने एक स्कूल में एक टीचर के साथ भी ये वाली बात कर दी थी. सही है ना? Not when I was a kid, when I was a parent. मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब मेरी बेटी जो है ना, वो उसके लिए पेरेंट टीचर मीटिंग में, ये I am talking about Pakistan, पेरेंट टीचर मीटिंग, not to mention the name of the school. तो मैं जब पेरेंट टीचर मीटिंग में गया, तो वो जो लेडी थी, जो टीचर थी, she said that your daughter is doing real good, और ये वो जबरदस्त, awesome performance. तो मैंने उससे कहा कि हाउ कैन आई रिलाई ऑन योर स्टेटमेंट? सही बात है ना, आपने ही तो पढ़ाया है, आपने ही थ्रू आउट द ईयर, यू आर द क्लास टीचर, यू आर द गार्जियन, एक्चुअली यू आर एवरीथिंग इन द स्कूल, एंड नाउ एट द एंड ऑफ द पीरियड यू सेइंग दैट शी इज डूइंग रियल ग्रेट. आई कैन नॉट रिलाई ऑन दिस स्टेटमेंट. सीधी बात है ना, मैं कैसे रिलाई करूं उस स्टेटमेंट पे व्हिच इज सेड बाय समवन हु इज एक्चुअली द परफॉर्मर? तो भाई आपके नजदीक तो बहुत अच्छा ही काम हुआ है. ऐसे ही बिल्कुल यही बात है, शेयर होल्डर्स भी तो यही कह रहे हैं कि हाउ कैन वी रिलाई ऑन दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हिच इज एक्चुअली प्रिपेयर्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कि यही तो पूरा साल रहा है, इन्हीं की परफॉर्मेंस तो इवैल्यूएट हो रही है, और अब इन्हीं की बात को हम कैसे यानी हम कैसे इन्हीं की बात को हम इन पे रिलाई करें. तो डायरेक्टर्स बोलते हैं कि भाई अब बताओ, व्हाट डू यू वांट, तुम्हें क्या चाहिए? तो ये कहते हैं कि जी हमें वी नीड अ थर्ड पार्टी. We need a third party. Okay, अगर डायरेक्टर्स कहें ठीक है हमारा बेटा आपसे कह दे वो तो थर्ड पार्टी है ना, बोला नो,
we need a neutral party. Okay, यानी we need a गैर जानिबदार party, जो तुम्हारा बेटा नहीं होना चाहिए. Independent party should not be your son, your daughter, your wife, your friend, your enemy. कोई दुश्मन भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर भी वो biased हो जाएगा. Your creditor, your debtor, receivable, payable, employee of the company, वो भी pressure में आ जाएगा. नहीं, we need a third party, we need a neutral party, we need an independent party, we need an impartial party. Okay, like who has no interest with the board of director, or with the company, or with the management, or with the function, no interest. बिल्कुल independent party. Directors ने कहा ठीक है, रोड पे एक शख्स जा रहा था, कोई टॉम डिक एंड हैरी, उसको बुला के लाए, hey mister, you come in and you give an opinion on this financial statement so that our shareholders get satisfaction. तो इसने कहा हम इस पे भी रिलाई नहीं करेंगे, क्योंकि ये न्यूट्रल, थर्ड पार्टी, इंडिपेंडेंट पार्टी, इम्पार्शियल पार्टी सब है, बट इज नॉट अ नॉलेजेबल पार्टी. तो इसका मतलब वेरी इंपॉर्टेंट इज द नॉलेज, वो भी चाहिए हमें नॉलेजेबल पार्टी. और इन पार्टीज को, और ऐसे शख्स को, और ऐसे असाइनमेंट को, और ऐसी पार्टी को आप क्या कहते हो? ऑडिटर. ऑडिटर, सही है ना, जो आके फिर इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एग्जामिनेशन करे एंड व्हाटसोएवर. सही है ना. अभी मैंने ऑडिट की डेफिनेशन पर बात नहीं की, अभी मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि ऑडिट की जरूरत दुनिया में फर्स्ट टाइम, अगर कोई आपसे ये सवाल पूछ ले कि लाइक व्हेन ऑडिट वाज रिक्वायर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस प्लैनेट, तो आप क्या बोलोगे? आप क्या बोलोगे? एक ही झटके में पहला सवाल, इस जवाब क्या होगा? Whenever two people came in this relationship, which relationship? Stewardship. जब भी दो लोग स्टूवर्डशिप रिलेशनशिप में आएंगे, एवरी टाइम यू नीड एन ऑडिट, क्योंकि जो ओनर होगा उसको ऑडिट चाहिए. सही है ना. वो स्टूवर्ड की बात पे इज नॉट गोना रिलाई. सही है ना. ही वांट्स अ थर्ड पार्टी, अ न्यूट्रल एंड इम्पार्शियल पार्टी, एंड अ नॉलेजेबल पार्टी हु सैटिस्फाइज द ओनर. ठीक है. और खैर ये ऑडिट जो है, ये तो कंपनीज में अब हमें नजर आता है ना, इस सदी में, पिछली सदी में, वरना अदरवाइज जो कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिट इज फ्रॉम, यू नो, फ्रॉम द किंग, फ्रॉम द मोनार्क एंड फ्रॉम द गवर्नमेंट एक्चुअली. कि भाई गवर्नमेंट के ऑडिट होता है. आज भी आप देखिए ना, पाकिस्तान में तो खैर ये वाला तस्वुर नहीं है, वरना अगर जैसे मैं अपने इस सिटी की बात करूं, मकीनी की, I'm not talking about the overall Dallas, just talking about this small city मकीनी, बाकायदा उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसका बजट, मीटिंग्स, ये वो कितनी चीजें जिसमें हर हाउस होल्ड को वो सब इंगेज है, और बाकायदा पूरी अकाउंटेबिलिटी. यानी बिकॉज व्हाट, दे आर स्टूवर्ड, दे आर स्टूवर्ड ऑफ द टैक्स मनी वी गिव दैम. सही है ना. जो सिटी को जो सारे पैसे दिए जाते हैं, लेकिन 5-10 मिनट दूर ही है सिटी ऑफिस, और उसमें सारी चीजें कि भाई हर चीज के लिए वो बाकायदा उसकी पूरी ट्रांसपेरेंसी, पूरी रिपोर्टिंग होती है, जिसमें बैठना जरूरी है, बात करना जरूरी है. उस पर अगर किसी को कंप्लेन है, कोई इश्यूज है, बहुत सारे, जैसे भी हमने यहाँ सिग्नल के लिए बात की है, लाइट लगाने के लिए, भाई यहाँ लगे क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो ये हमें चाहिए. तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज. तो असल में ये तस्वुर जो था, ये दुनिया में जो ऑडिट का तस्वुर आया, और ये एग्जामिनेशन और ये एहतिसाब का, ये वाला तस्वुर असल में सरकार की एहतिसाब का था. फिर उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम इज गोइंग टुवर्ड्स, यू नो, कंपनी. एंड आजकल जो हम देखते हैं, तो मेजर वी फाइंड कंपनी. सही ना. ओके, ऑलराइट, थोड़ी सी गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं. अभी मैंने ऑडिट की डेफिनेशन पर कोई बात नहीं की, अभी सिर्फ एजेंसी एंड स्टूवर्डशिप वो हम समझे. ओके. What is assurance engagement? Okay, now let's talk about this thing, और उसके बाद फिर we'll move on audit. क्योंकि ये समझ आ गया तो यूं समझे 90% आपको ऑडिट की डेफिनेशन समझ आ जाएगी. What is assurance engagement? देखो, assurance का वैसे मतलब क्या है? assurance का वैसे मतलब क्या है? लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, लेवल ऑफ कंफर्ट, है ना, कॉन्फिडेंस देना. जब कहते हैं ना कि भाई मैं आपको अश्योरेंस देता हूँ, यार ये टीचर कैसा है, इससे क्या BMBS पढ़ना चाहिए, इससे ऑडिट पढ़ना चाहिए, फलाना, तो आप क्या, ओके, आई गेट यू अश्योरेंस, आई गिव यू कंफर्ट, आई गिव यू कॉन्फिडेंस अबाउट दिस टीचर. यानी आप किसी को लेवल ऑफ अश्योरेंस, या अश्योरेंस का मतलब क्या होता है? किसी को कॉन्फिडेंस देना, किसी को कंफर्ट फैक्टर देना, कि ठीक है ना, मैं तुम्हें कॉन्फिडेंस देता हूँ, मैं कंफर्ट देता हूँ तुम्हें इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर के मुतालिक, या इस टीचर के मुतालिक, या इस शख्स के मुतालिक, या इस प्रॉपर्टी के मुतालिक, या इस गाड़ी के मुतालिक, व्हाटएवर. सही है ना. अश्योरेंस एंगेजमेंट, व्हाट इज अश्योरेंस एंगेजमेंट? देखो, अश्योरेंस एंगेजमेंट ये है, इट इज अ ट्राई पार्टी रिलेशनशिप. ये तीन लोगों के दरमियान रिश्तेदारी का नाम है. इट इज अ ट्राई पार्टी रिलेशनशिप.
तीन लोगों के दरमियान रिश्तेदारी का नाम। कौन तीन लोग? सबसे पहले ही पार्टी द रिस्पॉन्सिबल पार्टी, ओके। दूसरी पार्टी इज द इंटेंडेड यूजर। तीसरी पार्टी इज द प्रैक्टिशनर, ओके। ये हो गई तीन पार्टीज, इसको ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, यूं यूं, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल पार्टी, प्रैक्टिशनर एंड इंटेंडेड यूजर, ये तीन पार्टी। रिस्पॉन्सिबल पार्टी क्या है? लेट मी चेंज द कलर। रिस्पॉन्सिबल पार्टी वो पार्टी है who is responsible for designing the subject matter। मिसाल के तौर पे एक प्रॉपर्टी है, लेट्स मेक इट इजी। एक ऑडिट की किताब में मैं पढ़ रहा था, उसने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी थी। ये एक प्रॉपर्टी है, ये एक शर्ट है, एक शर्ट, एक अच्छा ड्रेस है, कोई बड़ा वेरी एक्सपेंसिव ड्रेस। रिस्पॉन्सिबल पार्टी वो है जिसने उस शर्ट को डिजाइन किया है। रिस्पॉन्सिबल पार्टी वो है जिसने उस घर को डिजाइन किया, उस घर को बनाया है, ठीक है। किसके लिए बनाया है? बनाया है इंटेंडेड यूजर के लिए, कि यूजर जो है ना, ही इज गोइंग टू अल्टीमेटली बाय दिस प्रोडक्ट और ही इज गोइंग टू अल्टीमेटली यूज दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। यानी रिस्पॉन्सिबल पार्टी वो पार्टी है जिसने डिजाइन किया है उस सब्जेक्ट मैटर को। सब्जेक्ट मैटर क्या है? शर्ट। सब्जेक्ट मैटर क्या है? प्रॉपर्टी। किसके लिए डिजाइन किया है? इंटेंडेड यूजर के लिए। लेकिन इंटेंडेड यूजर कहता है कि आई एम नॉट गोइंग टू रिलाई ऑन दिस सब्जेक्ट मैटर or I'm not going to rely on the statement of this responsible party। तो बोला भाई क्या चाहते हो तुम? तो इंटेंडेड यूजर ने कहा I want a third party, a practitioner, a very expert guy, जो इस सब्जेक्ट मैटर को क्या करे? एग्जामिन करे, एग्जामिन करे इस सब्जेक्ट मैटर को, एंड देन मुझे कॉन्फिडेंस दे, and then I can rely on this subject matter, otherwise मैं नहीं rely। सही है। तो अब देखें जरा बात को, इस रिश्तेदारी को हम कहते हैं अश्योरेंस एंगेजमेंट। इट्स अ ट्राई पार्टी रिलेशनशिप, तीन पार्टीज आ गई इसमें, और इसमें क्या आ गया? एक सब्जेक्ट मैटर आ गया। यानी अगर इधर देखें जरा गौर से, इसके कंपोनेंट में द फर्स्ट कंपोनेंट इज इट्स ट्राई पार्टी, ये तीन लोग इसमें आ गए। इसका दूसरा कंपोनेंट क्या है? सब्जेक्ट मैटर, you get it? Subject matter which is designed by the responsible party, कि responsible party ने उस subject matter को डिजाइन किया है, whether it's a shirt or property or whatever। अच्छा, अब जो प्रैक्टिशनर आया उसने उसको क्या करना शुरू किया? एग्जामिन। तो उसने एग्जामिन करना शुरू किया बेस्ड ऑन क्वालिटी या बेस्ड ऑन प्राइस या व्हाटएवर। तो इंटेंडेड यूजर ने कहा कि भाई मैं तुम्हें कहता हूं तुम इसको एग्जामिन करो, बट बेस्ड ऑन एन एग्रीड क्राइटेरिया, कोई इसका सूटेबल क्राइटेरिया हो सकता है वो उसको क्वालिटी की बेस पे देख रहे हो और ये कुछ और चाहते हो, सही है ना, कोई एक ऐसा क्राइटेरिया एग्रीड हो। तो इसका जो थर्ड कंपोनेंट है दैट्स कॉल्ड क्राइटेरिया, कि देयर शुड बी अ क्राइटेरिया फॉर द असेसमेंट, फॉर द एग्जामिनेशन। अच्छा, जब वो उसको एग्जामिन करेगा, प्रैक्टिशनर एक्सपर्ट जब उसको वो एग्जामिन करेगा, तो डेफिनेटली ही विल गेट सम सबूत व्हिच यू कॉल एविडेंस। उसके पास एविडेंसेस होंगे जब वो उसको असेस करेगा। और फाइनली वंस ही इज डन विद द एग्जामिनेशन, द लास्ट कंपोनेंट इज ही इज गोइंग टू मेक अ रिपोर्ट फॉर द इंटेंडेड यूजर। ठीक है, ये पांच इंग्रेडिएंट्स हैं, ये पांच कंपोनेंट्स हैं ऑफ एन एश्योरेंस एंगेजमेंट। ठीक है ना, आपने कभी एक शर्ट यूज ही नहीं की, आपने कभी एक प्रॉपर्टी बाय नहीं की। जैसे मैं आपको फिर यहाँ पर मिसाल देता हूँ, यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैंने इस घर की एग्जांपल आपको देता हूँ। तो इस घर के लिए, और यहाँ पर यूएस में वैसे भी जब आप घर बाय करते हो कोई भी चीज ना इस तरह, तो हमने तो खैर नया बिल्कुल कंस्ट्रक्ट करवाया था, लेकिन उसके बावजूद वी नीड एन इंडिपेंडेंट पार्टी, क्योंकि जिस डिजाइनर ने इसको बनाया, अब इसके अंदर 2500 चीजें हैं भाई इसके अंदर। तो उसने आके, तो मैंने एक दूसरा इंस्पेक्टर हायर किया था, उसको आई पेड,
सही है ना। बल्कि एक दफा और भी हायर करना पड़ा था क्योंकि साल के एंड में वारंटी खत्म हो रही थी, तो मैंने कहा अब क्या करूं, तो मैंने फिर एक बंदा हायर किया है, पेड हिम लाइक अराउंड $300। उसने आके पूरा घर डिटेल, एक एक चीज, एक एक ब्रेक, गार्डन, कुछ पानी, ये वो एवरीथिंग सब करने के बाद मैं आपको रिपोर्ट दिखा सकता हूँ। फिर उसने इतनी डिटेल रिपोर्ट मुझे बना के दी, और वो पूरी डिटेल रिपोर्ट मैंने बिल्डर को भेजी कि देखो तुम्हारे घर में ये दीज आर द फॉल्ट्स। Okay, I cannot rely on builder's inspector or builder's guy or builder's expert. I have to find some third party. What was the subject matter? In my case, the house. Who was the intended user? It's me. Who was the responsible party? It's the designer. Who was the practitioner? It was that inspector, the evaluator, the independent guy. सही है ना? And then there was a criteria based on quality and everything. सही है ना? फिर उसने एविडेंस लिए सारे, उसकी तस्वीरें ली उसने, इतनी डिटेल उसने, इतनी प्रोफेशनल रिपोर्ट उसने बनाई थी, एक एक चीज की तस्वीर उसने ली थी कि देखो यहाँ ये मसला है, यहाँ ये मसला है, यहाँ ये मसला है, एविडेंसेस, एंड देन फाइनली ही मेड अ रिपोर्ट फॉर, पूरी परफेक्ट एग्जांपल थी एश्योरेंस एंगेजमेंट की। अब आप मुझे बताएं हमारे केस में जो हम अपना ऑडिट पढ़ते हैं या फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमारे केस में, do you think audit is an assurance engagement? The answer is, let me change the color. Okay. The answer is yes. Audit एक assurance engagement है, जी है। कैसे? जरा गौर से देखें। What do you mean by subject matter? It is the financial statement. It is the financial statement. Comprehensive income, balance sheet. Who prepares it? The responsible party. तो हमारे केस में responsible party कौन है? The board of directors, the management. Who is the intended user? Is actually the shareholders, the stakeholders, indirectly all. See, the shareholders, the member of the company. Who is the practitioner? It is the auditor. What is the criteria? किस क्राइटेरिया पे वो जज कर रहे होते हैं? Based on company law, based on accounting standard, IS, IFRS, ISA, there's so many standards. हाँ, अगर किसी कंट्रोल को देखने जा रहे हो, maybe COSO, COCO framework, Cadbury report, there's so many criteria. What do you mean by evidences? हमारे पास पूरा आगे एक एरिया है evidences का, कि जिसमें वो इंफॉर्मेशन ऑडिटर गैदर करता है, and finally they make audit report. तो अगर कोई आपसे पूछे audit is an assurance engagement, the answer is yes, क्योंकि उसके अंदर ये सब कुछ मौजूद है। रिस्पॉन्सिबल पार्टी भी है, प्रैक्टिशनर भी है, इंटेंडेड यूजर भी है, देयर इज अ सब्जेक्ट मैटर, देयर इज अ क्राइटेरिया, दे गैदर एविडेंस एंड फाइनली दे प्रिपेयर रिपोर्ट। ओके, नाउ लेट्स कम टू ऑडिट। मैंने कहा था अब मैं ऑडिट की डेफिनेशन लाऊंगा। सो नाउ वी अंडरस्टैंड व्हाट इज कंपनी एंड द रिलेशनशिप, कंपनी इज ओन्ड बाय द शेयर होल्डर्स एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड द रिलेशनशिप, एजेंसी एंड स्टीवर्डशिप, रिश्तेदारी। और फिर जब स्टीवर्डशिप रिश्तेदारी होगी तो डेफिनेटली you need to have an audit, and audit is an assurance engagement. But what is assurance engagement? We got it. See, in assurance engagement, 5 components. One is the tri-party, ye teen log. There is a subject matter, criteria for assessment, evidence, the information you get it, and then last is the report they make it. Okay. All right. Now, what is audit? What is audit? What is audit? Audit is, और अगर ऑडिट को समझना है तो यूं करके भी समझा जाता है कि व्हाट ऑडिट इज नॉट। तो क्या ना, व्हाट इज ऑडिट ये तो सब पढ़ाते हैं, बट व्हाट ऑडिटिंग इज नॉट ये बहुत कम लोग ही पढ़ाते हैं। सो इफ आई से ऑडिट इज अ डिपेंडेंट एक्टिविटी और इनडिपेंडेंट एक्टिविटी, तो आपका सबसे पहला जवाब ये होना चाहिए कि सर ये डिपेंडेंट एक्टिविटी नहीं हो सकती। इट हैज टू बी गैर जानिबदार एक्टिविटी, इट शुड बी न्यूट्रल, इट शुड बी एन इम्पार्शियल एक्टिविटी। देखो ना, कहीं भी जब भी आपने ऑडिट का तो तस्वुर ही खत्म हो जाए ना अगर उसमें गैर जानिबदारियत खत्म हो जाए। ये बहुत बड़ी चीज है गैर जानिबदारी। जैसे आप लोग कहीं अगर आपको पुराने सब्जेक्ट में याद हो, होप यू रिमेंबर द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। खैर मैं ये सिर्फ एग्जांपल के लिए बात कर रहा हूँ। तो हम कभी भी देखते हैं व्हेन देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू पार्टीज एंड दे हायर आर्बिट्रेटर और समवन, सही है ना, और मे बी द जज और द कोर्ट ऑफ लॉ। आप क्या कहते हो सबसे पहली बात कि दैट आर्बिट्रेटर और दैट जज हैज टू बी इंडिपेंडेंट, दैट हैज टू बी इंडिपेंडेंट। वो किसी एक पार्टी का दोस्त, दुश्मन, किराएदार, उधार, एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ही न्यूट्रल पार्टी होनी चाहिए, गैर जानिबदार। तो जब सबसे पहली बात, ऑडिट इज एन independent,
ये बहुत बड़ी चीज है इंडिपेंडेंस, इस पे हमारे पास आगे पूरा एक सब्जेक्ट है, चैप्टर है पूरा इंडिपेंडेंस. Audit is an independent preparation of financial statement. Yes or no? The answer is a big no. Because preparing financial statement is not the responsibility of the auditor. It is the responsibility of the management. Is the responsibility of the directors. ये उनका काम है, ये auditor का काम नहीं है. तो audit is an independent preparation? No. Audit is an independent examination of किस चीज का एग्जामिनेशन? डायरेक्टर्स के चरित्र का? नो. डायरेक्टर्स एक्टिविटीज? नो. कंपनीज प्रोडक्ट? नो. कंपनी प्रोडक्ट क्वालिटी? नो. how the suppliers quality, how they get the raw material, the supply chaining, their HR? No. Audit is an independent examination of only those 5 things. क्या चीज? फाइनेंशियल स्टेटमेंट. एक हॉस्पिटल का आप ऑडिट कर रहे हो, so you are going there for the audit of hospital's financial state, not the what do you call the competence of the doctor, the education of the doctor, the background. नहीं भाई, नहीं, ये डॉक्टर्स को हम चेक करने नहीं है आपके हॉस्पिटल में. there's so many doctors, so many nurses, सब कुछ है. उनका फर्नीचर किस क्वालिटी का, इक्विपमेंट? नो भाई, ये नहीं. जो ऑडिटर्स गए, they have to examine just the financial statement. That's it. Audit is an independent examination of financial statement, and once they examine it, अभी definition को हम पूरा कर रहे हैं. Once they examine it, then they give guarantee. No. What is audit or what auditing is not? तो जब बोले what auditing is not, audit is not a guarantee. Audit is not an absolute guarantee. So audit is an independent examination of financial statement, and एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद ऑडिटर क्या करते हैं? ऑडिटर क्या करते हैं? वो सिर्फ अपनी राय देते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि उनको भी तो अपनी लायबिलिटी को मिनिमाइज करना है. अगर वो गारंटी दे दें और फिर कोई चीज मिसहैप हो जाए, इतनी बड़ी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देयर सो मेनी ह्यूज बिग नंबर्स बेस्ड ऑन एस्टिमेशन, सो मेनी थिंग्स. हाउ इज इट पॉसिबल दैट दे गिव यू गारंटी? दे कैन नॉट. देयर इज नो वे दे गिव गारंटी, वरना तो ये बेचारे खुद फंस जाएंगे. तो दे जस्ट एक्सप्रेस एन ओपिनियन. तभी आप देखें ना, जहां भी ये प्रोफेशनल सर्विसेज होती हैं, एट द एंड दे ऑलवेज गिव डिस्क्लेमर कि भाई ये जैसे मुझे भी इसने सब कुछ करके दिया, उसके बाद नीचे अपना डिस्क्लेमर भी डाला कि ओके, आई हैव प्रोवाइडेड यू सो मेनी थिंग्स, आई पॉइंटेड आउट सो मेनी थिंग्स, बट व्हाटएवर कम्स इन माय नॉलेज, विद द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज. ये थोड़ी कि कल को मैं उसको सू कर दूं. बहुत बड़ा पॉइंट है इसमें. तो इट्स एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, सिर्फ राय कायम करते हैं वो अपनी. डिटेल एग्जामिनेशन के बावजूद आखिर में अपनी राय देते. एक आम आदमी ये सोचता है, those who are not done with this audit paper or ACCA जो नहीं पढ़े हुए, वो ये सोचता है कि यार ये जो मैंने शेयर्स खरीदे एंड फाइनली व्हेन आई गेट दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट और सारी चीजों घर पर, उसको ऐसा लगता है यार केपीएमजी ने शायद गारंटी दी है, ईवाई ने गारंटी दी. उसको ऐसे सोचने दो, क्योंकि वो इज कॉमन मैन. ओके. एंड टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, किस पे ओपिनियन देते हैं? ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अपनी राय देते हैं. एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. क्या ओपिनियन देते हैं? वेदर it presents correct and accurate view. Yes or no? The answer is no. Financial statement can never be accurate. क्यों accurate नहीं हो सकती? आप बताइए क्यों accurate नहीं हो सकती फाइनेंशियल स्टेटमेंट? हम बोले बिल्कुल एग्जैक्ट 1 to 1 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आप सिर्फ बैलेंस शीट को उठा के देख लो तो यू सी नॉर्मल, अ टिपिकल बैलेंस शीट नॉर्मली कवर अप 60% एस्टिमेशन. अंदाजे होते हैं, कितनी अनसर्टेनिटीज है उसमें, कितनी कॉन्टिजेंसीज हैं, अनसर्टन. और यह सबसे बड़ी अहम चीज जो एस्टिमेशन, अंदाजे. यू स्टार्ट फ्रॉम फिक्स एसेट, द लाइफ इज एस्टिमेटेड, देयर इज नो एक्यूरेट लाइफ. The scrap value is estimated. You look at inventory estimation, estimated NRV. You talk about debtors, estimated provision. Provision is itself estimation. सही ना? Provision for doubtful debts, provision for bad debts. आप employee benefits उठा लें, employees की liability उठा लें, कितनी चीजें creditors में, इसमें उसमें सब में you see एक normal balance sheet 60% अंदाज है, और technical balance sheet sometimes cover up 80% based on estimation. जब estimation इतना होगा, how can you say that this financial statement present correct view, this financial statement presents accurate view? It's no way. बात ही नहीं हो सकती.
So it presents what? Whether it presents true and fair view. True and fair view. Now, what do you mean by true and what is fair? True और fair में क्या फर्क है? और true और fair कहते किसको? What is true and what is fair? जब आप कहते हो, अभी ऑडिट की डेफिनेशन खत्म नहीं हुई, बात चल रही है। जब आप कहते हो, let me change the color. जब आप कहते हो what is true? ट्रू का मतलब क्या है? जब ऑडिटर कहता है ना दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ट्रू, ट्रू का मतलब ये है समथिंग बेस्ड ऑन फैक्ट। हम कहते हैं ना टेल मी द ट्रुथ, ट्रुथ का मतलब समथिंग विच इज नॉट फॉल्स, गलत नहीं, समथिंग विच हैज सम यू नो फैक्ट्स, फैक्चुअल बात करो। मिसाल के तौर पे when you say financial statement is true, let me give you an example. If I see the balance sheet, I can see the value of the property. It means there is a property somewhere. तो इसको हम क्या कहेंगे? It is true, facts है। There we have the property documents, okay? This company is actually own that particular property. इसका मतलब जो property की value लिखी है, it is true. अगर आप sales की figure देते हो, statement of comprehensive income, if you look at the sales or purchases or whatever, say in expenses, sales जैसे आपने लिखा, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई sale हुई है, invoice मौजूद है, you have the dispatch note, goods dispatch note है, बैंक में पैसे आए हैं, sale हुई है, there is a receivable existence, तो हम क्या बोलेंगे कि हाँ भाई ये सेल जो है दिस फिगर इज ट्रू। ट्रू का मतलब समथिंग व्हिच इज नॉट फॉल्स और इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स, फैक्चुअल बात। व्हाट इज फेयर? सिर्फ ट्रू से बात नहीं बनेगी, क्योंकि प्रॉपर्टी मौजूद है, ये ट्रू है, इक्विपमेंट मौजूद है, ये ट्रू है, सही है ना? फेयर का मतलब क्या है? नो बायसनेस, नो डिस्क्रिमिनेशन। हाँ, fair means free. This financials not only true, but it's fair, free from bias and discrimination. For example, you have equipments, you have machineries, properties, so many things. Every time you depreciate, every year you depreciate. Let's say you're doing straight line method, see, every year you use the straight line method, or straight line method आप लोगों को पता है, जिसको आप fixed installment method कहते हैं. This year, at the end of the year, the wife, CFO wife, she has, let's say, XYZ number of shares, material shares, number of shares of this company you're talking about, or at the end of the year she plans to dispose of the shares. वो अपने shares है ना market में बेचना चाह रही है. So obviously what she wants, she always think of good profits. जब profit अच्छे होंगे, definitely will have good earning per share अच्छी तो you'll get a big jump in share price, सही है ना, market price अच्छी. CFO है, बोला क्यों ना इस दफा depreciate तो करेंगे, we'll have property, equipment, everything is there, everything is true. लेकिन एक काम ये करते हैं कि let's change the policy, let's change the method change कर देते हैं, policy change कर देते हैं इस दफा. हर साल अगर साल के आखिर में भी if they buy asset, they always charge full year depreciation. तो depreciation expense ज्यादा होता है हमेशा. आखिरी महीने में भी जो asset buy होता है, तो policy consistent ये रखी भी इन्होंने कि भाई पूरे साल की depreciation charge कर दो. Okay, that's fair if it is consistent. लेकिन इस साल बोला नहीं, साल एक काम करते हैं कि डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे बेस्ड ऑन यूजेज, बेस्ड ऑन टाइम प्रोपोर्शनेट. बोला ठीक है, तो क्या हुआ, अल्टीमेटली द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस विल गो डाउन. जब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कम हुआ, ऑटोमेटिकली प्रॉफिट अप, ईपीएस अप, शेयर प्राइस अप, एंड सीएफओवाई एंजॉयिंग द प्रॉफिट और एंजॉयिंग द कैपिटल गेन. यू गेट इट? तो बात ये समझ आई कि क्या है, दिस इज दिस ट्रू? यस, you have the equipment, you have documents, you have depreciation, सब कुछ है, but it is not fair because the policy is biased. ठीक है ना? ऐसे और बहुत सारे हो सकते हैं कि एक्सपर्ट से समटाइम उनसे ऐसी राय ले ली जाती है कि जिसकी वजह से जो लॉसेस होते हैं वो एकदम प्रॉफिट में बदल जाते हैं, एक्चुअरियल असम्पशंस ऐसी ले ली जाती है. तो बहुत सारी ऐसी टेक्निकलिटीज हो सकती है जिसके अंदर यू कुड बी ट्रू बट नॉट फेयर. भाई आईएफआरएस से डिपार्ट कर दिया आपने, हाँ? जो बात आईएएस और आईएफआरएस कह रहे हैं, आपने उस बात को नहीं माना, तो ये भी तो अनफेयर हो गया ना, ये भी अनफेयर हो गया. ट्रू होना अलग चीज है, फेयर होना अलग चीज है. So when you talk about an opinion on the financial statement by auditor, they have to look at both the things, not correct and accurate, उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा, वो नहीं है. They have to talk about truth and fairness of the financial statement based on their examination. सही है? अब सुने आगे. तो ऑडिट क्या हुआ भाई? ऑडिट is an independent examination of what? Not so many things, but just the financial statement, and then they express an opinion on the financial statement, whether it presents a true and fair view in all material respect.
ये देखो, ये बड़ा पॉइंट है इसके अंदर, इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट। इसका मतलब ये है कि जो उसने एग्जामिनेशन किया है और जो अपनी राय दी है वो मटेरियल इंफॉर्मेशन पे दी है। मटीरियलिटी क्या है, मे बी आपने अकाउंटिंग में पढ़ा हो, लेकिन हम मटीरियलिटी पढ़ेंगे एंड विल अगेन डू फ्रॉम द स्क्रैच, सही है ना। यानी वो इंफॉर्मेशन, अभी तो मैं शॉर्ट करके बोल दूं, यानी उन इंफॉर्मेशन पे उसने अपनी राय दी है फाइनेंशियल्स में which may affect the decision of the user of the financial statement, यानी something which is important। कभी कभार आप कहते हो ना किसी दोस्त को, यार मुझे एक ट्रीट दे, वो ट्रीट देनी है, तुमने पेमेंट करनी है इस बार, वो कहता है, वो सोचने लगता है, हम क्या बोलते हैं, यार इतनी सी बात, इट इज समथिंग इमटेरियल फॉर यू, ये तो तेरे लिए इज जस्ट अ पॉकेट चेंज, ये तो तुम्हारा कोई छोटा मोटा पेटी कैश है। तो मटेरियल से मुराद समथिंग which has some value in the eyes of that particular shareholder or particular stakeholder। तो ऑडिटर जो है वो भी अपनी राय जो दे रहा है, जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख रहे हो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ते हुए ये याद रखना कि जो उसने अपनी राय दी है, ऑल्दो उसने राय दी है, सिर्फ गारंटी नहीं दी, गारंटी तो दी नहीं है, उसने राय दी है, और उसकी राय मटेरियल इंफॉर्मेशन पे, लेट्स से सेल्स की ह्यूज फिगर, उस पे उसकी राय, सही ना, बड़ी बातों पे उसने राय दी है। इसका मतलब इसके अंदर दबे लफ्जों में एक बात छुपी हुई है। वो क्या छुपी हुई है, अगर आप तस्वीर का दूसरा रुख देखिए, क्योंकि मुझे तो अमूमन ऐसा ही लगता है कि जो स्टैंडर्ड बोर्ड्स होते हैं ये कहते तो ये है कि दे वर्किंग इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक एंड द सोसाइटी, बट समटाइम यू फील दैट दे आर वर्किंग in the best interest of the auditor, because there's so many areas you see, ऐसा ही लगता है कि these standards are actually covering up you know auditor, कि उसके कामों को उनको उनकी फेस सेविंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी तो ऐसा ही हुआ। अगर इसी बात को थोड़ा उल्टा करके पढ़ दो तो क्या है, इसका मतलब ऑडिटर हैज नॉट गिवन एनी ओपिनियन ऑन इमटेरियल थिंग्स। इमटेरियल चीजों में 2500 गलतियां हो सकती है, दे डोंट केयर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तो ऑडिट की डेफिनेशन कह रही है कि एज एन ऑडिटर यू एग्जामिन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बेस्ड ऑन योर एग्जामिनेशन यू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट that it presents a true and fair view in all material respect, not immaterial respect. Immaterial could be so many things wrong, okay, लेकिन अब जो मैं बात लिखने जा रहा हूं उसमें मटेरियल से भी वो हट जाएगा। वो क्या है, ऑडिटर provides guarantee, no, auditor provides absolute assurance, no, not 100% assurance, auditors provide reasonable assurance to the users. To the users means to the shareholders, to the stakeholders, whatever users of the financial statement. अब जरा आप सोचें, ये आखिरी बात जो लिखी है ना, इसमें तो बिल्कुल ही अपनी लायबिलिटी उसने लिमिट कर दी। वो क्या कर दिया, जब उसने कहा, पहले मैं क्या कहा था, इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट, इसका मतलब इमटेरियल गलतियां हो सकती हैं, लेकिन दूसरी लाइन में बोला ऑडिटर प्रोवाइड्स रीजनेबल एश्योरेंस टू द शेयर होल्डर। रीजनेबल का मतलब ये है कि मटेरियल गलतियां भी हो सकती है, बिकॉज आई एम नॉट प्रोवाइडिंग यू 100% एब्सोल्यूट एश्योरेंस, 100% गारंटी आई एम नॉट प्रोवाइडिंग यू। जैसे आप मुझसे बोले, सर आप हमें पढ़ाएंगे, क्या गारंटी है कि विल गेट क्लियर मार्क्स, यानी विल गेट द क्लियर, विल गेट द पास, ऐसे नो गारंटी। सर हम आपको इतनी फीस दे दें, नो गारंटी, स्टिल मैं गारंटी नहीं दे सकता। कैन यू गिव एब्सोल्यूट एश्योरेंस, सर प्लीज, आई कैन नॉट, आई कैन ओनली गिव यू रीजनेबल एश्योरेंस। रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब ये है कि मैं अपने तौर पे बहुत डिटेल मेहनत करूंगा, लेकिन आई एम नॉट इन द पोजीशन टू गिव यू 100% एब्सोल्यूट एश्योरेंस। और वो क्यों नहीं दूंगा, ये मैं अगली क्लास में बात करूंगा इस पे, इससे हम आगे चलेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा, सही है ना। तो ऑडिट, तो आज आपने देखो, आज क्या बात आप समझे, आज आप बात ये समझे कि व्हाट इज कंपनी एंड एजेंसी एंड स्टूवर्डशिप, एंड व्हाट इज एश्योरेंस एंगेजमेंट। एक्चुअली एश्योरेंस एंगेजमेंट, द ट्राई पार्टी रिलेशनशिप, वो क्या है, और क्या ऑडिट एक एश्योरेंस एंगेजमेंट है? द आंसर इज यस। एंड व्हाट इज ऑडिट? इट इज इंडिपेंडेंट असाइनमेंट। ये देखो मैंने लिखा, इसको सर्कल किया, इट इज इंडिपेंडेंट, इट इज ओनली examination of financial statement, and then just an opinion on what? Financial statement, whether it presents correct and accurate, no way, only true and fair view. And what is true, you understand. What is fair, yes you do. And in all, very important, material respect, and then with reasonable assurance.
ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन में क्या फर्क है? ऐसे एक जनरल बात। कुछ लोग कहते हैं ना कि कुछ आम आदमी ये कह रहे होते हैं कि यार ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन एक ही चीज है। No, no. Although forensic audit, it's not a part of your course outline. Maybe in final papers, ACC और CA के final papers में आप लोग पढ़ते हो, लेकिन at this level you don't do forensic audit. मैं किसी दिन हल्का सा जिक्र जरूर करूंगा forensic audit का, बल्कि maybe in the next class I can talk on forensic audit. सिर्फ मैं ऐसे ही हल्की बात करूंगा ताकि आपको आइडिया ऑफ forensic accounting होती क्या forensic audit. लेकिन अगर मैं अभी ऐसे बोलूं ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन में क्या फर्क है, तो देखो इन्वेस्टिगेशन could be performed by anyone. कोई भी कर सकता है, पुलिस वाला भी जो कर रहा होता है, what is that? Investigation. But that's not an audit. वो audit नहीं है। इन्वेस्टिगेशन कभी चोरी होती है इदारे के अंदर, कोई फ्रॉड हो रहा है, तब इन्वेस्टिगेशन होती है। ऑडिट हर साल होता है with examination of, that's the examination of only financial statement, examination of financial statement। लेकिन इन्वेस्टिगेशन किसी कोई इवेंट, स्टॉक हाउस, वेयर हाउस में there is some theft, you call people, they investigate it, insurance companies who investigate, that's not an audit। तो ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन में फर्क है। तो मैंने कहा ऑडिट करने वाले लोग कौन है? प्रोफेशनल बॉडी के मेंबर है। हाँ, जैसे अगर पाकिस्तान में रहते हुए लेट्स से साइनिंग अथॉरिटी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ऐसे ही है ना, तो उनके पास है। इसी तरह और दुनिया जहां में there's so many bodies and they have this thing। जबकि इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई जरूरी नहीं है प्रोफेशनल बॉडी के मेंबर हो। फिर इस तरह ऑडिट में जो स्टैंडर्ड्स अप्लाई होते हैं, जैसे आइजा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई ऐसा स्टैंडर्ड है नहीं। सही है। एक बड़ा अहम इसमें पॉइंट, इन्वेस्टिगेशन जब शुरू होती है तो जो बंदा इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है, he has in this mind for the other party to whom he's investigating, he starts up with this intention that he has committed a fraud, that he is a wrong guy, सही ना, he is a bad guy। ये इंटेंशन के साथ शुरू होता है। ऑडिट इस इंटेंशन के साथ नहीं शुरू होता कि सामने वाली पार्टी ने फ्रॉड किया है। विल टॉक ऑन प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म वेरी सून। सही ना, हम उस पर बात करेंगे कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या होता है, क्योंकि व्हेन यू डू ऑडिट यू हैव टू मेंटेन प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, आई प्रॉमिस, बहुत जबरदस्त। सही है ना। इन्वेस्टिगेशन में ये होता है कि यू स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन विद द इंटेंशन दैट द पर्सन हैज कमिटेड अ फ्रॉड, तभी तो उसको प्रूव करने के मूड में होता है ना। तो ये सारे, तो इस तरह ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन फर्क है। और फिर अगर कोई आपसे कहता है ऑडिट इज अ गारंटी, नो वे, इट्स नॉट अ गारंटी। एक आम आदमी तो ये भी सोच रहा होता है कि जो KPMG EY ये लोग हैं, ये जो यूनिलीवर में वो जब पढ़ रहा होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो बोलता है यार दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज एक्चुअली प्रिपेयर्ड बाय KPMG और EY। नो, it's not the preparing activity, it's the examining activity, it's not the preparing activity। चलिए यहाँ पर यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट टाइम हम इससे आगे चलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें एंड हैव अ ग्रेट टाइम। थैंक यू।